انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کر کے حضور کے آنے کا انتظار کر رہی. میری لو لگی تھی حضور کی طرف، میرا ذہن حضور کی طرف مائل تھا، میرے خیالات کے ایرو حضور کی طرف تھے. امی خدیجہ کہتی ہیں میں انگلیاں رکھ کے حضور کا انتظار کرتی آنکھوں پہ، اچانک میں نے کیا دیکھا، حضور میرے گھر کی طرف تشریف لا رہے. دعا کرو. آپ نے دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا چراغا یا رسول اللہ. لیکن افسوس یہ ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بہو، چاروں کے کمرے سے رات کے 1 بجے گزر کے دیکھو تو سب کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، کسی کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی. اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری بیوی بھی، ہماری بیٹیاں، بچے بھی شامل ہیں. صوفی صاحب رو کے کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اور جب موبائل کی انگلیوں میں مقید ہوتا ہے اور موبائل انگلیاں جب تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے. جب موبائل گر جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں. وہ درویش کہتا ہے ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں میرے درود کا انتظار کرتے ہیں. اللہ اللہ. حضور اپنے عاشقوں کی آواز سننا چاہتے ہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ 10 مرتبے ہی صحیح حضور پر 10 درود پڑھ کے سوئیں گے. ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ. جناب ابی طالب کے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ گئے. کہاں گئے؟ بصرہ. امی خدیجہ کا بزنس کا سامان لے کے بصرہ گئے. بصرہ معلوم ہے کہاں؟ یہ کویت کے بارڈر پر ہے، بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میں کئی مرتبے بصرہ گیا ہوں. اگر دل کہے بولنے کا سبحان اللہ بولنا. اسی بصرہ میں اس عظیم الشان تابعی کی مدار شریف ہے جس کو مولا علی کا خلیفہ کہا جاتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوا، حضرت خواجہ حسن بصری کے نام سے. اونچی بولے 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم امام الائمہ اپنے خواب کی تعبیر جن سے پوچھنے کے لیے جاتے تھے وہ امام محمد ابن سیرین وہی پہ آرام کرتے. 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک وہی پہ لیتے ہوئے، جناب زبیر بن عوام، جناب عتبہ بن غزوان اور جناب حضرت طلحہ بن عبید جیسے عظیم صحابہ کی مزارات مبارکہ. چلیں گے انشاءاللہ. جب غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے تو چلیں گے انشاءاللہ. بولے کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم. لگا کے بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کا سامان لے کے خدیجہ کا نکلے نا بصرہ. جب لوٹ کے آئے تو خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بزنس کا سفر کیسا رہا؟ تو میسرہ کہتا ہے اتنا اچھا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اچھا سفر حضور کے ساتھ یہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اندر کی کنڈیشن دیکھیں آپ. حضور جب تشریف لائے خدیجہ کے گھر میں حساب کتاب کرنے کے لیے، حضور اس قافلے کے امیر قافلہ تھے، پورا لیکھا جوکھا حضور کے پاس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے نا تو خدیجہ کہتی میں دوڑ کر اوپر سے نیچے آ گئی. میں نے حضور کو دیکھا دروازے پر کھڑے تھے. میں نے کہا آپ تشریف لائیں. حضور تشریف لائے، بیٹھ گئے. میں بھی حضور کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئی، مثال کے طور پر بیٹھ گئی. حضور سامنے بیٹھے ہیں. سننا، ایک جوان عورت 40 سال کی صورت میں سامنے حضور کے بیٹھی ہے اور حضور حسینوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، حسن کائنات کا بیس حضور سامنے بیٹھے تھے. توجہ دیجئے گا. امی خدیجہ کہتی ہیں میں نے اکسا کر کے حضور سے سوال کرنا شروع کیا. صرف اس لیے بار بار حضور سے سوال کرتی تھی حضور میری طرف دیکھیں، حضور میری طرف دیکھیں. میں نے کہا ہاں یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں؟ تو حضور گردن نہیں اٹھاتے تھے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہیں اٹھاتے تھے. آپ اپنی گردن مبارکہ جھکائے فرماتے تھے چھوٹی والی کھجوریں اتنے کی بکی ہیں. پھر میں کہتی کہ ابھی نہیں گردن اٹھائی. پھر میں سوال کرتی اچھا یہ بتائیں یہ بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی؟ تو حضور پھر بھی گردن نہیں اٹھاتے تھے. سامنے جوان لڑکی بیٹھی ہوئی، حضور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. امی خدیجہ کہتی میں نے بہت سوچا کہ کسی بھی صورت میں حضور میری طرف دیکھیں. دیکھنا دل کہے تو بولنا حضور خدیجہ کی طرف کیوں دیکھتے؟ جس کی آنکھوں نے رب کے جلوے دیکھے ہو وہ خدیجہ کو کیوں دیکھے گا؟ ہائے ہائے. امی خدیجہ فرماتی ہیں جب میرے گھر میں بڑے بڑے امیر زادے، امیروں کے بیٹے آتے تھے میرے گھر میں حساب کرنے کے لیے تو حساب کم کرتے تھے، میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے. لیکن دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں.
امی خدیجہ کہتی ہیں میرے گھر میں بڑے بڑے پیسوں والوں کے بیٹے آتے تھے لیکھا جوکھا لے کے حساب کرنے کے لیے، وہ حساب کم کرتے تھے لیکن میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے، لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے کھایا ہے۔ حضور نے گردن نہیں اٹھائی، حضور کی گردن نیچے تھی۔ یہ جو ہم بہن بیٹیوں کی طرف تاکیں، یہ روشن دان، یہ کھڑکیاں، یہ کوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں نا، اسے میرے امام نے بے باکیاں کہا ہے اور حضور کی نیچی نظروں کی بات کی ہے۔ اگر کہو تو ایک شعر پڑھ دو، ہر شخص کو یاد ہے، فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور نے حساب کیا، میری طرف دیکھا بھی نہیں اور حضور چلے گئے، حضور جا رہے تھے، میرا دل بھی حضور کے قدموں سے لپٹا ہوا جا رہا۔ جب رات کو بستر پہ آئی تو حضور یاد آئے، حضور کی آنکھیں یاد آئیں، حضور کے لب یاد آئے، حضور کے رخسار۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ 100 روپے اپنی مسجد کے امام کو دے کے بولے حضور صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے؟ کیا یہ آپ کو توفیق نہیں ملتی؟ کبھی امام صاحب کو بلا کے اپنے گھر پہ 2-4 کھجوریں، 1 کپ چائے رکھ دے، حضور صرف اتنا بتا دیں کہ سرکار کے ہونٹ کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی۔ آپ نہ پوچھو گے تو پھر کون پوچھے گا؟ سمجھ رہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے آئے، خدیجہ کہتی حضور میرے دل کو بھی لے کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو بھی لے کے چلے گئے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی سہیلی کو بلایا، میں نے کہا دیکھو حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، آج لڑکے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، لڑکیاں بھی غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ کی ناک کٹی ہوئی ہے، غریب لوگ ہندو ہو یا مسلمان پریشان ہیں، ان کے گھروں میں ذلت و رسوائی نے قبضے جما رکھے ہیں، لڑکوں کی آوارگی کی وجہ سے، بچیوں کی آوارگی کی وجہ سے۔ سننا ان باتوں کو غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ میرج ہے، 25 سال کی عمر ہے اور خدیجہ کی 40 سال کی عمر ہے۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی کو بلایا، کہا میرا دل کہتا ہے میں حضور سے رشتہ کر لوں۔ تو سہیلی نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا میرا سپورٹ کر۔ کہا کیا؟ کہا حضور کی پھپھو کا نام ہے عاتکہ اور صفیہ، تو وہ تیری سہیلی ہے، جا کے ان سے میرے رشتے کی بات کر۔ تو سہیلی خدیجہ کی نکل گئی عاتکہ اور صفیہ سے بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے کے لیے۔ جب عاتکہ اور صفیہ نے سنا کہ یہ تو خدیجہ کی سہیلی حضور کا رشتہ لے کے آئی ہے تو خوش ہو گئی۔ آپ نے جملہ کہا تھا ایسا کل میرے گھر پہ آنا، وہاں حضور بھی ہوں گے اور میرے بھائی بھی ہوں گے جناب ابی طالب اور میری بھابھی بھی ہوں گی، ان کے سامنے اس رشتے کی بات کرنا، میں تیری حمایت کروں گی۔ دیکھیں حضور کا رشتہ کیسے ہوا۔ آپ کا رشتے، اگر آپ کے رشتے کی بات چلتی تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کے بولتے حضور بس بولتے رہیے، ابھی پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا سب آ رہا، بس آپ میری شادی کی بات کرتے رہیے۔ بوڑھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ارے بیٹا کہاں یاد دلایا تم نے میری پرانی داستان۔ یہ اس کی شادی ہے جسے شب اسرا کا دولہا کہا جاتا ہے۔ جو نہ ہوتا تو ان بچیوں کے گود میں یہ مسکراتے ہوئے بچے نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو گھروں کی منحوسیت اور بے برکتی کبھی گھر سے باہر نہ جاتی، اس قدر گھروں میں خانہ جنگی ہوتی کہ ہمیشہ گھروں میں خون کی بارشیں ہوتی رہتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک کردار ہے جسے النکاح من سنتی کے دائرے میں دیکھا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں دوسرے دن خدیجہ کی سہیلی آئیں۔ معلوم ہے جب گھر کے اندر انٹری کیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چچا جناب ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف سامنے حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں، ان کے قریب میں عاتکہ صفیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا اور سلام کیا اور بڑی خوش تھی، اہلا و سہلا مرحبا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ گھر کے لوگوں نے کہا اے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے، بڑی خوش ہو کے میرے گھر پہ آئی ہے۔ تو خدیجہ کی سہیلی نے کیا کہا، رشتہ لے کے آئی ہوں۔ دیکھنا ہے کتنے لوگ اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہا، رشتہ لے کے آئی ہوں۔ کہا کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ اب دل کہے تو بولنا، تو فاطمہ بنت اسد کہتی خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو سہیلی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی۔ اتنا سنا تو حضور نے گردن جھکائی، سب نے حضور کی طرف دیکھی، حضور کی بارگاہ سے آواز آئی، عجیب بات ہے، خدیجہ کی سہیلی جو آج رشتہ لے کے آئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے بہت پہلے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے۔ حضور مسکرائے، یہ مسکرانا یس کی نشانی ہے، رشتہ پکا ہو گیا۔ رمضان سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ آئی۔ آئیے میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو باتیں بہت کم سنی گئی ہیں۔
जलसों में हंगामों की भीड़ भाड़ में ये बातें होती बहुत कम है। आप कहते हैं नारे लगे, बातें समझ में नहीं आई, मैं बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह बोले, हाथों को उठा के बोले अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए या रसूल अल्लाह। बेटे ने सुने आप, अब हुजूर की शादी का दिन आया। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह सब बच्चियों के लिए गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए और सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बारात की सुबह आई ना तो जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलवाया और कहा, अय मेरे भतीजे तेरी शादी की तारीख है। फरमाया रब की मर्जी से। जनाब अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा आज तेरी बारात जाएगी, तेरी शादी। एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं चाहता हूं कि तू अपने किसी खास दोस्त को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना ले, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। इतना सुनना था, हुजूर रोने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया जनाब अबी तालिब कैसी बातें करते हैं? फरमाया क्या हुआ? कहा आप मुझसे कहते हैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। जब मैं 2 महीने का था तो अपनी माँ के पेट में था। उस वक्त मेरे बाप का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरे रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। ऐ चचा, न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी कोई बहन है। आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। किसको बनाऊं अपना मेहमान? जनाब अबी तालिब ने कहा जिसको मर्जी है बना ले, बना ले। तो जनाब अबी तालिब से हुजूर ने क्या कहा, अगर इजाजत दें तो मैंने एक शख्सियत को अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाने की नीयत कर ली है। सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला ने इस जुमले को जाहिर फरमाया। हुजूर ने फरमाया चचा मैं चाहता हूं कि एक जात को मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाऊं। तो जनाब अबी तालिब ने कहा वो जात कौन सी है? देखना कितने लोग उसका नाम सुन के अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ जनाब अबी तालिब चचा, मैं चाहता हूं कि जो जात मेरी शादी में चीफ गेस्ट बने वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ अम्मी हलीमा। अम्मी हलीमा। हाथों को उठाएं। कोई आपसे पूछे कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान कौन था तो क्या बताओगे? ऐसे बोलोगे? क्या था? कौन था? हुजूर की मां अम्मी हलीमा। हुजूर की मां अम्मी हलीमा हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान बन के आई थी। आज की रस्म क्या है? सब बारात में जाएंगे, 200, 300, 400 बाराती जाएंगे, लेकिन मां अपने बेटी की शादी में नहीं जाएगी। है ना रस्म? वो घर पे रहती है। काश पता होता घर वालों को ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने अपनी शादी में अपनी मां अपनी हलीमा को चीफ गेस्ट बनाया था। सुभान। और आज का आलम क्या है? बुरा न माने तो एक बात का, जवान बेटी की शादी होती, उसके दोस्त आते कहते हैं क्या हुआ तेरी माँ कहाँ? वो मालूम क्या कहता है? बेटा वो कमीनी हो गई, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई, उसे मैंने धक्के मार के बाहर फेंक दिया। वो छोटे वाले भाई के घर में रहती है, मेरा मौत जिंदगी का उसका साथ छूट गया। तो दोस्त कहते हैं पागल हो गया यार, माँ है तेरी माँ, उसे बुला के ला, चल 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 वरना मेहमान क्या कहेंगे। तो बेटा, बड़ा बेटा पेट पर दिल पर पत्थर बांध के जाता है अपनी माँ के पास। माँ बैठी है, रो रही है। वो कहता है चलो बारात आने वाली। माँ कुछ कहती नहीं, सिर्फ 4 आंसू बहा करके अपने टूटे हुए चश्मे से उसे साफ करती है, अपने दुपट्टे को सलीके से सर पर रखती है, फटा हुआ दुपट्टा, चप्पल टूटी हुई है, टेढ़ी मेरी लाठी है, उसे उठा करके माँ आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई अपने सीने पर बड़ा सा सिल्क, बड़ा सा पत्थर लेकर के आज अपने बड़े बेटे के घर में आई है। किसी ने उसे देखा तो बातें नहीं की। उस बेटे की बीवी ने देखा तो गालियां देने लगी। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे में चली जाएगी। माँ को किसी ने पूछा तक नहीं, सगी माँ है, बैठी हुई है वहीं पर जहां पर प्लेटें धुली जाती हैं, जहां पर गरीब औरतें बर्तन धुलती हैं शादी के दिनों में, वहीं पर किनारे अपनी चप्पल को उतार के सगी माँ बैठी हुई। समझ रहे हैं? जो आ रहा है उसी को वही एक धक्के मार रहा है। किसी ने दिल कहा तो एक कप चाय दे दिया, किसी ने कहा तो थोड़ी सी रोटी दे दी। माँ ने अपनी बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करती, चुपचाप उठ करके रोती हुई अपने घर में आ गई, मुसल्ला बिछाया। माँ ने एक बात कही है, मेरे परवरदिगार आलम, ये बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटे की शादी है, इसकी आबरू बचाना मेरे मौला, इसकी आबरू बचाना, इसकी आबरू न जाने पाए। माँ दुपट्टे को उठा के उस वक्त तक दुआ करती रहती है जब तक विदाई खैरियत से नहीं हो जाती।
लेकिन लोग हैं कि अपनी माओ को ठोकरें मारते हैं, कहते हैं भाइयों के बंटवारे में मां को जलील करते हैं। एक भाई की हिमायत मां करती है तो एक दूसरा भाई अपनी मां को तमाचे मारता, अपनी मां को गालियां देता। बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी एक बुजुर्ग है, गौस पाक के बेटे, मैं उनके घर पे गया हूं, उससे कहने लगे कि लॉकडाउन के मौके पर कोरोना वायरस था, मेरी बच्चियां मेरे सब बच्चे बीमार थे, ऑक्सीजन की कमी थी, गौस पाक की बारगाह 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। बोले किससे कहता, किससे कहता? सबके घरों से मौत और जनाजे निकल रहे थे, चीख पुकार का आलम था, दुनिया में करोड़ों लोग मर गए। तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैं थक गया, मैं समझ गया कि मेरी बच्चियां बच नहीं पाएंगी, ये मेरे फूल जैसे बच्चे मर जाएंगे। मुझसे रहा न गया, मेरी बूढ़ी माँ थी, उसे मैंने चारपाई से उठाया और उठा करके एक कुर्सी पे बिठाया। जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई, हजरत उल्फाम भाई, वसीम भाई, वो कहते हैं जब बैठ गई कुर्सी पर तो मैंने टप लाया प्लास्टिक का, अपनी माँ के पैरों के नीचे उसे रखा, एक लोटे में पानी लाया, अपनी माँ के दोनों पैर धुलने लगा और दोनों पैर के धुले हुए पानी को मैंने उसी टप में रखना शुरू कर दिया। जब वो टप में पानी भर गया, मेरी माँ का पैर धुल उठा, तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं लोटा मैंने साइड में कर दिया, माँ के पैरों को चूम करके साइड में किया और उस टप वाले पानी को किनारे रखा। रखने के बाद मैं अपनी बच्चियों से कहा लाइन से आती जाओ, अपने बेटों से कहा लाइन से आते जाओ, सब लाइन में खड़े थे, मैंने कहा बैठ जाओ, और बैठकर मैं सबको एक गिलास पानी टप से भरता जाता था और उनसे कहता जाता था इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, इस पानी को पी लो, इस पानी को पी लो। मेरे बच्चे उस पानी को पीते जाते थे और मैं कहता जाता था ऐ मेरी बच्चियों, मेरे बच्चे सुनो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। जहां बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जाती है, मेरी माँ के पांव के गुसाले काम आते हैं। जहां बड़े बड़े अल्लाह के औलिया किराम की दुआएं भी मुअल्लक टंगी रहती हैं, वहां माँ की दुआ उससे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ती है। मालूम है आज अपनी माँ को ठोकरें मारते हैं लोग, जिल्लत रुसवाई का सामान समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था काश मेरी माँ जिंदा होती। क्या कहा हुजूर ने? काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरे आका फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ तीसरी सफ के बगल में बाबे आयशा है हरम नबी में। मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़े होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ की से जाके लिपट जाएगा, अपनी माँ के दामन से लिपट जाता और अपनी माँ के हुजूर पहुंच जाता। अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो लोग खड़े हैं, माँ कहती बेटा सुन, तो कहता बैठी रहे। माँ कहती बेटा एक खांसी की सीरप चाहिए, पैसे नहीं है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या हुआ, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया, दिल्ली के अजनी शरीफ में मेरी माँ की तदफीन अमल में आई। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती थी मैं अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के हाथ उठा के दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, अल्लाह मेरी मुश्किलों को दूर कर। एक हम अपनी माँ को नफरतों से देखते हैं, हाथ उठा के बताएं जिनकी माएँ जिंदा है, उठाएं 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 जिनकी माएँ जिंदा है माशाल्लाह। सब लोग एक मतलब दिल से बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसी नहीं आवाज सबकी आनी चाहिए, माँ की हयात दराज हो, ऊंची बोले ऐ अल्लाह। हाथों बढ़ा के फिर से बोले आप खुशकिस्मत है, मैं आपकी माँ को अपनी माँ कहता हूँ। मेरी माँ का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। रातों को 2 बजे 3 बजे जाता था ना, मैं अपनी माँ को सोते हुए देख करके वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, बाहर टेबल पे 2-2 घंटे बैठा रहता था। कभी कभी सख्त रातों में बैठा रहता था तो मेरी माँ उठती थी, वो कहती बेटा दरवाजा खोल के अचानक आ जाती थी। मैंने कहा आमी क्या बात है, आप क्यों निकल आई? बोले बेटा तू कब आया है? तो मैं कहता था मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। बोले इतनी सर्दी में तू बाहर बैठा हुआ? तो मैं कहता था कि अम्मी तू दरवाजे के करीब सो रही थी, मैंने सोचा तुझे दस्तक दूंगा तो तेरी नींद में खलल पैदा हो। मेरी माँ यही कहती थी बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों के लिए, तो
तुम्हारे घर की सलामती की दुआ, तुम्हारे घराने की सलामती की दुआएं करती है। कैसे जालिम, इतने लंबे लंबे सफर करना बच्चों का खेल है, इतने बड़े बड़े इदारों की बात दौड़ संभालना बच्चों का खेल है। ये खुदा की कसम ये सारी दुआएं मां की, रब्बे काबा की कसम सारी दुआएं मां की। एक आलिम दीन थे, 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की, 9 साल तक। घर गए, अल्लाह के वली हो गए। दोस्तों ने पूछा, यार इल्म हासिल किया था मदरसे में, घर जाके वली कैसे हो गया? बोले घर गया तो बूढ़ी माँ मेरी लेटी हुई थी बिस्तर पे, मैं अपनी माँ के करीब गया, मेरी माँ बोली आ गया तू? मैंने कहा मदरसे से पढ़ के आ गया। बोले दस्तार हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। तू फारिग हो गया? मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा हाँ अम्मी मुझे इल्म की सनद मिल गई। मेरी माँ ने कहा बैठ। मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, मेरी माँ को तकलीफ बहुत थी। फिर वो आलिम दीन कहते हैं अपने दोस्तों से, मुझसे पूछते हो मैं वली कैसे बना, अल्लाह का दोस्त कैसे बना? सुने, मेरी माँ बैठी हुई थी, अचानक मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अचानक मेरी माँ की आंख लगने वाली थी, नींद आने वाली थी। उसने मुझसे कहा बेटा, मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोले ये दरवाजा 2 पल्ले का है ना, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है। बस मैं उठ करके गया और 2 पल्ले थे, एक पल्ले को मैंने खुले हुए थे, एक को बंद किया, एक को खुला हुआ छोड़ करके अपनी माँ के पास आया। माँ सो गई थी। फिर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, माँ ने क्या कहा था? एक पल्ले को बंद कर दे। क्या कहा था? ऊंची बोले, एक पल्ले को बंद कर दे। तो मैंने एक पल्ले को बंद कर दिया, एक खुला हुआ था। फिर वो आलिम साहब कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है, पता नहीं अम्मी को बायां पल्ला बंद होते हुए पसंद ना हो। ये ना ये ख्याल हो कि ये वाला बंद करना चाहिए, ये क्यों बंद कर दिया? तो फिर उठ के गए वो आलिम साहब, दाएं वाले को खोल दिया और बाएं वाले को बंद कर दिया। फिर आके अपनी माँ का पैर दबाने लगे। फिर ख्याल आया, हो सकता है अम्मी का इशारा दाएं पल्ले की तरफ रहा हो, इधर की हवा अम्मी को तकलीफ देती हो। फिर उठ के गए, दाएं पल्ले को बंद किया और बाएं को खोल दिया। ऐसे ही रात भर दाएं बाएं दाएं बाएं, दायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी दायां पल्ला बंद करते। मालूम है वो आलिम कहते हैं सुबह की फजर की अजान की आवाज आई, मेरी माँ की आंख खुल गई, मेरी माँ की आंख खुल गई। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा तू सोया नहीं? मैंने कहा अम्मी मैं तेरे कदमों के नीचे जाग करके अपनी तकदीर जगा रहा था, अपनी तकदीर। तो माँ ने कहा बेटे रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? तो बोले अम्मी आपने कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे एक खोल दे, तो ये थोड़ी कहा था कि दायां बंद कर दे बायां खोल दे, आपने कहा था एक बंद कर दे एक खोल दे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे किस बंद पल्ले की हवा ज्यादा पसंद है या नापसंद है, कौन सा पल्ला तू बंद होते हुए देखना चाहती है। इसीलिए अम्मी कभी इसे बंद करता, कभी उसे, कभी उसे, कभी इसे। यही करते करते अम्मी मेरी रात गुजर गई, तेरी जात को तकलीफ ना हो। माँ ने पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गई। माँ का चेहरा किबले की तरफ था। माँ ने कहा मेरे बेटे इधर देख मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ। जैसे वालिम दीन कहते मैंने अपनी माँ की तरफ देखा ना, तो फिर मेरी माँ का चेहरा मुझे नजर नहीं आया। पीछे दीवार थी, दीवार भी नजर नहीं आई। खुदा की कसम अगर दिल कहे तो बोलना। वालिम दीन कहते मेरी माँ ने कहा इधर देख, जब मैंने देखा उधर तो न माँ का चेहरा नजर आया, ना दीवार मेरे घर की, मेरे सामने खाने काबा की दीवार नजर आ रही है। दीवार खाने काबा नजर आई, उसके मुबारक खिलाफ नजर आए, उसके ताने बाने नजर आए, उसकी बरकतों की मुताब की वादियां नजर आई। मुझे मीज़ाब रहमत और वादी नूर की बरकत नजर आई, सफा मरवा की पहाड़ियां नजर आई, समझे। और आवाज आई परवरदिगार आलम की, ओ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक तूने जो इल्म हासिल किया है वो तेरी आंखों तक बसा हुआ है। आज माँ की खिदमत की वजह से जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया है। एक रात की थोड़ी सी कोशिश पर अल्लाह ने अपनी विलायत की सर्टिफिकेट अता की। जो काम आपको एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुश्किल पड़ जाएगा, माँ की दुआ से वो काम कितना आसान होता है। कभी दुआ करा के देखो, फिर से उठाए अपने हाथों को, जिनकी माँ जिंदा है उठाए, वादा करें इंशाल्लाह कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे। ऊंचे बोले, अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे ना, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। माशाअल्लाह। कभी माँ को डांटना नहीं इंशाल्लाह। जलसे में हर जलसे 10-20 साल के बाद आना या ना आना, इसी पर अमल करना इंशाल्लाह। हर रात जलसे में रहने का सवाब मिलता है। कभी कभी माँ के पास बैठा करो, माँ से मोहब्बत किया करो।
ایک بیٹے نے ماں کو پریشان کیا, ماں ہوتی ہے, ماں کو پریشان کیا, ماں چلی گئی تھانہ, جا کے سی او صاحب سے بولتی ہے میرے بیٹے نے مجھے دھکے مار کے باہر کی. سی او صاحب کو جلال آ گیا, جیسے بولے چل تیرے بیٹے کے نام ایف آئی آر کر کے تجھے گھسیٹ کے جیل میں لا. جیسے سی او صاحب دروازے پر آئے, ماں رونے لگی. تو سی او صاحب نے کہا کیا بات ہے, اب روتی کیوں ہے اماں؟ بیٹے کے خلاف ایف آئی آر کر کے آئی ہے. ماں نے معلوم کیا کہا, اسے میں نے پیدا کیا ہے, اسے مارنا نہیں, وہ میرا بیٹا ہے, مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا, میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. میں تو ایسے ہی گئی تھی تھوڑا سا دھمکی امکی ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کی آخرت نہ خراب ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسے ماں کہتے ہیں, اسے ماں کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے میرے چچا ابی طالب, میں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ. وہی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا بتاؤ گے؟ جن کی مائیں زندہ ہیں ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. اگر ماں کا, اور وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا, جن کی ماں نہیں ہے. اگر قریب میں قبرستان ہو تو اپنی ماں کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ. بولے دل سے بولے اپنی ماں کی قبروں پہ جائے. تمہاری مائیں اپنی قبروں پہ تمہارا ہمارا انتظار کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا اور ہمارا انتظار کرتی ہیں. اور ایک گزارش ہے کہ کبھی جب قبروں پہ جایا کرو, قبرستان میں نا تھوڑی سی چینی ہے یا پارلے بسکٹ ہے یا کچھ سیو ہے, چڑیوں کے لیے چوٹیوں کے لیے لے کے ضرور جایا کرو انشاءاللہ. بولے یہ صوفیہ کا طریقہ رہا انشاءاللہ. بولے اور اپنی ماں سے محبت کریں گے. حضور کی شادی کی تاریخ ہے, حضور کی ماں چیف گیسٹ بن کے موجود ہے. کوئی پوچھے گا تو حضور کی شادی میں کون تھا سب سے خاص مہمان, تو کیا بتاؤ گے؟ ایسے بتاؤ گے, ایسے ہی. ہاں بٹوا دیا جائے شیرینی, بولو بھائی بٹوا دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ تو کنفرم کر لو, نہیں بعد میں آپ مجھے ڈھونڈو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ اپنی ماں سے محبت کریں گے؟ یہ سوال کا, اس سوال کا جواب اپنے پاس رکھے رہیے گا. حضور کی نکاح کی تقریب میں دو لوگوں نے خطبہ پڑھا, ایک کا نام ہے خویلد, ایک کا نام ہے جناب ابی طالب. حضور کی شادی ہو گئی, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. شادی ہے اس لیے خوشخبری ہے. آپ بولے حضور کی فرسٹ میرج ہو گئی. اب حضور اعلان کریں گے النکاح من سنتی کا, حضور کا رشتہ. آپ کے یہاں سسٹم کیا ہے, سید پور سے بارات جاتی ہے بارہ بنکی, اور بارات 200-250 رہتے ہیں, 100-150 رہتے ہیں. وہاں جا کے دولہے کا نکاح ہوتا ہے, پھر دلہن کو لے کے چلے آتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا بھائی. لیکن مکے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مکے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ باراتی جاتے تھے دولہے کے لوگ کر کے, اور دولہے کے نکاح کے بعد دولہے کو سسرال میں چھوڑ دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ دولہے کو سسرال میں چھوڑ دیتے تھے. حضور کو بھی سسرال میں چھوڑ دیا گیا. حضور کی سسرال کہاں تھی بتا دوں؟ جو لوگ مکہ گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں مکہ شریف جانے والے, کتنے لوگ ہیں جو مکہ شریف گئے ہیں؟ 5-7 لوگ ہیں. اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. تیاری کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, سچ بولنا, حلال کھانا, حضور پر درود پڑھنا, کبھی نہ کبھی حضور کرم فرمائیں گے. ایک شعر حضور مفتی اعظم ہند کا یاد کر لو, اسے پڑھتے رہو گے تو کہیں جاؤ نہ جاؤ مدینہ ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. بتا دوں وہ شعر, وہ شعر یہ ہے, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کرو. پڑھ کے بتائیں کون شعر ہے؟ ماشاءاللہ. علماء کرام کی قلیل تنخواہیں ہیں, چاہتا ہوں کہ اسے وظیفے کے طور پر پڑھا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس شعر کو پڑھا کیجئے گا, مدینے شریف ضرور جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کبھی آؤں گا تو مدینے کی بات کروں گا, ابھی تو حضور کی شادی کی بات چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعی نہیں ہوئی, حضور اپنی سسرال میں رہ گئے. سسرال کہاں تھی؟ یہ صفا مروہ کی پہاڑی ہے. جب صفا سے مروہ کی طرف جاؤ گے تو مروہ کا جو دروازہ ہے اور وہ جو پتھر مبارکہ ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اس کے تب پیچھے جائیں گے نا جہاں اولڈ گیٹ آف مروہ تھا, پرانا مروہ, اس کے قریب جائیں گے 20 ہاتھ کے فاصلے پر. وہاں جا کے بائیں مڑ جائیں گے 10-15 ہاتھ کے فاصلے پر. چپ چاپ وہیں پہ کھڑے ہو جائیے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیجئے گا, خوشبو محسوس ہوگی. جہاں پر آپ ہیں احساس کیجئے گا اسی کے آس پاس ایک ایسا گھر تھا جو گھر امی خدیجہ کا تھا, جو گھر حضور کی سسرال کہلاتا ہے. ایک دم وہیں پہ حضور کی سسرال تھی. اگر ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے, بتا دوں اسی گھر میں حضور کی بڑی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے. اسی گھر میں حضور کی بیٹی رقیہ پیدا ہوئی تھی. اسی گھر میں حضور کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. اگر میں نے منع کیا تب بھی سبحان اللہ کہو گے اور پوری آواز میں کہو گے. اسی گھر میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی.
इसी घर में हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे, प्यार से बोलो। बेटों का इंतकाल हुजूर के हो गया। ये 4 बेटियां हुजूर की मुबारक दरबार भरबार में रहती थी, 4 बेटियां। अहले तशा कहते हैं हुजूर की 1 बेटियां थी, कुरान से साबित है, हुजूर बनात का लफ्ज आया भाई साहब। हुजूर की 4 बेटियां थी। पूछी बोले कितनी? 4। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, हुजूर के 2 बेटे का इंतकाल हुआ। एक बात बता दूं, हुजूर के बेटे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे। हुजूर की फर्स्ट मैरिज हुई ना, तो 6 बच्चे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे। एक दिन हुजूर की बीवी खदीजा ने हुजूर से पूछा था, आका मेरा एक बेटा इंतकाल कर गया, वो बेटा आपका भी है और मेरा भी है। समझ गए? समझ गए ना भाई जी? अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी कहती है मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, आपका भी था, वो मेरा बेटा था। ये बता दें वो किस हालत में है? यार अकीदा बेहतर है तो ऊंची बोलो, समझ रहे हो सवाल? क्या मतलब? हुजूर की बीवियां भी जानती हैं कि अगर मरने वाले की कोई खबर दे सकता है तो हुजूर दे सकते हैं। ये सवाल क्यों किया गया? हुजूर के बेटे के बारे में हुजूर की बीवी ने पूछा कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है? मरने के बाद इंसान कहां जाता है? अगर अरब के बाद मक्के की बात है, अलबहा में है, अलकसीम में है, जिद्दा में है, रियाज में, कहां है? ना 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 ना, कहां की खबर देनी हुजूर को? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा मालूम है? हुजूर ने फरमाया खदीजा वो जन्नत में टहल रहा। जिसका अकीदा है जरा ऊंची बोले, ऊंची बोले। बदअकीदे कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। सूफिया कहते हैं पागलों से कह दो तेरी इस ना जानने को भी हुजूर जानते। टॉपिक इल्म गैब नहीं, मुझे आसानी से थोड़ी सी बात करनी है, समझ रहे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा ने पूछा मेरा बेटा कहां है? मेरे आका फरमाते खदीजा वो जन्नत में टहल रहा। जवाब हो गया? बोलो भाई, जवाब हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मेरे आका ने एक बात और कह के उल्फाम भाई सवाल को मुश्किल कर दिया। मेरे आका फरमाते खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? ऐसी बोलोगे? क्या अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। मेरे आका की बीवी खदीजा कहती है नहीं सरकार नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। अल्लाह अम्मी खदीजा है, मालूम है हुजूर के ऐलान नबूवत का वक्त आ गया। आपने क्या झेला इस्लाम के लिए? आपने क्या तकलीफ पहुंचाई, तकलीफ बर्दाश्त की इस्लाम के लिए? मेरी इस कमेटी की तरफ से इस इलाके के जो बहुत सारे सियासी लोग हैं वो तशरीफ लाए हुए थे, और फैज़ाबाद के पता चला कि वो यहाँ के संसद जी हैं, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। मैं अपनी कमेटी की तरफ से संसद जी का और यहाँ के जितने भी सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम तर कारकुनान का इस्तकबाल करता हूँ, और सभी अपने इस इलाके के जो दुनियावी तौर पर कायदीन हैं, और मैं उनके आने पर खुश हूँ और मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह सबको एहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफात की इस मंडी में मोहब्बतों की बातों की एक भीड़ की ज़रूरत है। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको मोहब्बतें बांटने वालों में शामिल फरमाए, आमीन कह दें। मैं कमेटी वालों की तरफ से तमामी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ जो इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बने हुए हैं, आमीन कह दें। मोहब्बतों से अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। एक बात सुने आप, मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी हैं, हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, आपने क्या किया? सिर्फ वीडियो में मोबाइल में वीडियो देखी है, फलस्तीन में इतने बच्चे मार दिए गए, और कुछ नहीं देखा। कभी आपके बच्चे आपकी गोद में नहीं मारे गए, सिर्फ आपने देखा है तो चीख मारते। मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी मक्के में शेबे अबी तालिब की घाटी में बंद किया गया था। हुजूर क्या खाते थे बता दो आपको? तो शादियों में अगर ठंडी रोटी मिलती ना, उसे उठा के नीचे फेंक देते, चावल के ढेर बड़े बड़े ढेले ना, उसे जूतों के नीचे रौंद देते। बोटियां आती है तो सबसे पहले हमारी ही प्लेट में चली जाए, रोटियां ठंडी हो तो हम गालियां देते हैं, चावल देर में आए तो सेल्फी लेके गालियां देते हैं, साले के पास खिलाने के पैसे नहीं थे, फिर लकीर का फकीर था क्यों बुलाया मुझको। इस किस्म की गालियां हम नशर करते हैं, लड़की के बाप की इज्जतें लूटते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। साहिबों इसे कागज पर लिख करके एक तस्वीर लेना और उसे कभी कभी स्टेटस पे लगाना। 3 साल तक हुजूर के जो गुलाम थे उस घाटी में जिनका हुक्का पानी बंद किया गया था, वो क्या खाते थे मालूम है? कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई हुजूर को सौदा देने को तैयार नहीं था।
रातों को चुपके चुपके अम्मी खदीजा हुजूर की बारगाह में कभी कभी आती थी तो हुजूर के लिए, गुलामों के लिए कुछ खाने हो जाते थे। हुजूर पूछते थे, खदीजा मेरी बच्चियां ज़ैनब, रुकैया और कुलसूम कैसी है? तो खदीजा रो के बोलती, आपको याद बहुत करती है मेरे आका, आपको याद बहुत करती है। बच्चियां कहती, क्या कसूर है मेरे बाप का, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, जो लोगों ने मेरे बाप को कैद कर रखा, भूखा प्यासा मेरे बाप को कैद कर रखा है लोगों ने। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर बहुत रोते थे, हुजूर के गुलाम बहुत रोते थे। मालूम है तकलीफ कितनी थी? हुजूर के गुलाम क्या खाते थे मालूम है? जो चमड़े ऊंट के उनके जूतों में लगे होते थे, उस वक्त के जूते, ऊंट के चमड़े के जूते जो पहनते थे, उसमें जो चमड़े लगे होते थे, उसे चाकू से काट काट कर पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। आपके लिए खेल कूद है, हमारे लिए तफरीह का सामान है। हमारे दस्तरखान पर मुर्ग मुसल्लम ना हो तो जलसे से वापस चले जाएं। आपको अगर अच्छे खाने न मिले तो नाराज होते हो, चावल ठंडा मिले तो बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारते हो, बावर्ची खाने की प्लेटें तोड़ते हो। कभी उस नबी की जिंदगी पढ़ो जिसके सदके में ये घर के चूल्हे सलामत है, जिसके सदके में आपके दो पांव आपकी जिंदगी का बोझ लेके दौड़ रहे हैं। मेरे आका के गुलाम जूतों में लगे हुए चमड़े को चाकू से काट के उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने 3 साल तक इतना गम बर्दाश्त किया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और हुजूर की 4 बेटियां, हुजूर के 2 शहजादे, इंतकाल के बाद ये 4 बेटियां हुजूर के साथ रहते थे। करीब में एक पहाड़ी है जिसको गारे हिरा कहते हैं, 3500 फीट की बुलंदी पर यह पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर हुजूर जाके 27 दिनों तक अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह का रसूल रब को याद करता था, 27 दिनों तक याद करते थे। अल्लाह अकबर। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख आई, सुनना इसे भूलना नहीं और बेतवज्जही मत होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी मुबारक महफिल है, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा 9 रमजान शरीफ को मक्के शरीफ में, जब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। एक जुमला हुजूर गौस पाक के शहजादे से शबाहत ने फरमाया था, इस जुमले को लिखो मेरी बहनों, इसे याद कर लो, बहुत काम आएगी। 50,000 के लाची पहन के तुम्हारी शादियों में तुम्हें दुल्हन बनाकर भेजा जाता। सूफिया कहते हैं 50 जोड़े कपड़े नए मिले, 20-25 पुराने पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हवस खत्म न हुई। काश इन बहनों को चाहिए था इतने कीमती लिबास लाचे वगैरह के, उसी कपड़े को कभी रातों के अंधेरे में चुपचाप पहन करके, मुसल्ले पर खुशबू लगा करके, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ करके अपने हाथों को उठा के ये दुआ कर ले, मेरी बहन, अरे मेरे मौला, मैं बेलिबास पैदा हुई थी, ये तेरा करम है कि इतना कीमती लिबास तूने अता फरमाया। लाख रुपए के आसपास जेवर चले गए, शिकवे शिकायतें की दीवारों में दरार पैदा हो गई। कभी उन्हीं जेवरात को पहन करके अल्लाह के हुजूर तो हाजिर हो जा, ऐ मेरे मौला, ये तूने अता फरमाया, इस गरीब बंदी पर तूने इतना बड़ा करम फरमाया। शुक्र की तरफ नहीं, नाशुक्री की तरफ हमारा जहन चला जाता है। एक बोटी हमारी बहन को ससुराल में अगर कम मिलती है तो टेलीफोन के जरिए से अपने घर बताती है। माँ कहती बेटी क्या हुआ, तो कहती किस टीचर के हमेरी शादी की है, यहां तो गोश्त खत्म हो जाता है, घर के लोग गोश्त ही खा डालते हैं, तो माँ के हाथ से निवाले छूट जाते हैं। बाप दस्तरखान से उठ करके तकिए पे आंसू बहा बहा के रात गुजारता है। ये लड़कियां समझती हैं मैंने ससुराल की शिकायत बाप से माँ से करके किला फतेह कर लिया है। इनको पता ही नहीं है कि अपनी माँ और अपने बाप की जिंदगी को जहन्नम में डाल दिया। न जाने कितने रिश्ते इसी में कमजोर हो गए। मौलाए कायनात की निकाह में मखदूमा फातिमा आई थी, उनसे मौला अली ने पूछा था जब इमाम हसन, हुसैन, जैनब और मोहसिन पैदा हो गए थे। मौला अली ने कहा था मेरी बहन सुनो, मौला अली ने फरमाया था अय मेरी बीवी फातिमा, इतने मेरे बच्चे हो गए, कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। अगर दिल कहे तो बोलना, कभी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तो जनाबे फातिमा ज़हरा फरमाती ऐ मेरे शौहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मांगना नहीं बल्कि देना सिखाया है। ये कौन इस पर अमल करेगा अगर मेरी बहनें तुम अमल नहीं करोगी? क्यों जलसे में आपको अल्लाह आने की तौफीक अता फरमाता है। गर्मी के मौसम में निकाब ओढ़ करके, गर्मी के मौसम में, ये उमस के माहौल में अपने बच्चों को 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो बच्चों को लेकर बैठना क्या मतलब? यही ना कि हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत से आशना हो, हमारे दिल में हुजूर की बेटियों की तालीम बैठ जाए। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे संवरने से दीन मुस्तफा की जुल्फें संवर जाती हैं। मैं अभी पूना गया था, पूना
ابھی 2 مہینہ پہلے تو وہاں جلسے میں ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی. میں نے کہا اکیلے ہو؟ بولے میرے شوہر ہے. میں نے کہا بلا کے لاؤ. آ کے بیٹھی نا رونے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آصف بھائی میں ویڈیو دیکھتی ہوں میرا دل بڑا مائل ہوتا ہے, میں آپ سے ملنا چاہتی تھی. میں نے کہا بولو. ان کے شوہر بیٹھے تھے تو معلوم کیا بولے, پہلے میں اسلام کی طرف نہیں تھی, اپوزٹ میں تھی. اب میں نے حضور غوث پاک کی باتیں سن سن کر کے اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمائی. پھر معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ میری بہنوں سنو, اس لڑکی نے کہا کہ بھائی جان 2 یا 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے مجھے قرآن پڑھنے کی جب توفیق ملی تھی, اتنے دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل. اللہ اللہ. میں نے سوچا کہ میں اس کی چپلوں کو چوم لوں, میں اس کے شوہر کو مبارکباد پیش کروں. میرا دل اس پہ وارے جانے کا کہہ رہا تھا. میں نے کہا بہن بہت بہت مبارک ہو, یہ شرف تجھے اس عمر میں مل گیا, ورنہ لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ. آنکھیں گندی ہو گئی ہیں. حضور کیسے آئیں گے؟ حضور کیسے خواب میں نظر آئیں گے؟ 50,000 کا موبائل دے دیا 12 سال کی بیٹی کو, اور اپنے وہ پھر اپنا کام کرتی ہے 30 سال کی عمر کی لڑکیوں کی. آپ نے 70,000 کا موبائل اپنے 6 سال کے بیٹے کو دے دیا ہے. رات دن اسی میں لگا ہوا. کبھی پوچھا آپ نے میرے بیٹے اس موبائل سے درود تاج تو یاد کر لے, اس موبائل سے کبھی چاروں خل تو یاد کر لے, کبھی قرآن کی تلاوت نہیں سنی میں نے اس موبائل سے تجھے؟ اتنا قیمتی موبائل ہے. اپنے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا, اپنے بچوں کو ہم نے آوارگی سکھا دی, اپنے بچوں کو ہم نے اپنے بڑھاپے کا سامان بنانا چاہا لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہیں بنانا چاہا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بیوی ہے. میری بہنوں سننا, سب سے بڑی پیسے والے باپ کی پیسے والی بیٹی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ. کیا نام ہے؟ اونچی بولے. حضور کی پہلی بیوی ہے, حضور کی فرسٹ وائف, پہلی بیوی ہے. معلوم ہے 9 رمضان شریف کی رات تھی, ان کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی تھی. گھر میں اندھیرا تھا, بھولنا نہیں ان باتوں کو. گھر میں اندھیرا تھا تو سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی. کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسے یاد کرو. کہا اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں. جلا لیتی. کہا تیل نہیں. منگا لیتی. کہا پیسے نہیں ہے. اس نے کہا اوہ خدیجہ تیری ساری دولت, تیری ساری پراپرٹی کیا ہو گئی؟ 40 اونٹوں پر تیری بزنس کے سامان لگے رہتے تھے. اس وقت کے حساب سے وہ سینکڑوں ٹرک ہوتے ہیں. یہ 15-20 سالوں میں تیری ساری پراپرٹی کیا ہو گئی؟ اگر دل کہے تو بولنا. امی خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی, رونے لگی. بولی میں نے اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی. ہاں یار پھر سے بولو, ہاتھوں کو لا کے بولو کس کے نام پر؟ ہم تو حضور کے نام پر اپنا وقت بھی قربان کرنے کو تیار, حضور کے نام پر درود پڑھنے کو بھی تیار نہیں, حضور کے نام پر ہم کسی نمازی کی مدد بھی کرنے کو تیار نہیں. ہم جہاں پر بیٹھ جائیں کوئی نمازی ہو تو بے نمازی ہو جائے, جہاں پر بیٹھ جائے کوئی حلال کھانے والا ہو تو حرام کھانے لگتا. ہم تو بوڑھے نمازیوں پر پتھر مارتے ہیں مسجد میں, ہم ان کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں, ان کی چپلوں کو غائب کر دیتے ہیں, غریب لڑکیوں کے دوپٹے کھینچ کر کے بھاگتے ہیں, غریب لوگوں کے گھروں میں پتھر پھینکتے ہیں. ہاں یہ ہمارے بچوں کا مزاج بن گیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے نقصان کتنا ہے. ٹاپک نہیں ہے. سنیں آپ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رات میں 9 رمضان شریف کی رات ہے. کون سی تاریخ تھی؟ 9 رمضان. اسی رات میں ان کی طبیعت بگڑ گئی, حضور کی بیوی کی, پہلی بیوی حضور کی. چاروں بچیاں حضور کے قریب بیٹھی تھی, رو رہی تھی. اچانک طبیعت زیادہ بگڑی نا, معلوم ہے سانس اکھڑتی نظر آئی تو حضور بھی رونے لگے. زینب و رقیہ ام کلثوم اماں 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 کہہ کے رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا. حضور کی پہلی بیوی کا انتقال, جنازہ حضور کے گھر میں رکھا. میرے آقا باری باری اپنی بچیوں کو سینے سے لگا کے روتے رہے. زینب بھی روتی رہی, رقیہ بھی روتی رہی, ام کلثوم بھی روتی رہی, فاطمہ طیبہ بھی. ابو میری ماں کا انتقال, میری ماں کا انتقال. حضور تسلیوں پہ تسلی دیتے رہے. معلوم ہے اس کے بعد صبح ہوئی تو حضور نے کیا کہا, ہے کوئی مکے میں جو میری بیوی خدیجہ کے لیے ایک قبر کھود دے؟ غلام آ گئے, بولے حضور اجازت دیجئے ہم آپ کی بیوی خدیجہ کے لیے قبر کھودیں گے. فرمایا جاؤ فلاں جگہ قبر کھودو. پھر حضور نے فرمایا کہ میں مکے کے بازار سے کفن لاتا ہوں, کوئی ہے جو میری خدیجہ کو نہلا دے؟ اے میری قبیلے کی عورتوں آ جاؤ, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. قبیلے کی عورتیں آئیں, کس کی بات میں کرتا ہوں؟ جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی,
जिसकी वजह से अल्लाह ने जमीन व आसमान बनाए। आज वो नबी अपने कबीले की औरतों से कहता, आ जाओ मेरी बीवी को गुस्ल दे दो। हुजूर के कबीले की औरतें आई अम्मी खदीजा को नहलाने के लिए। हुजूर बाजार मक्का से कफन लेके आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ गोरकन कब्र खोदने वाले आ गए। उन लोगों ने कहा कि आए आका करीम कब्र तैयार हो चुकी है। मेरे आका ने मालूम क्या कहा, पढ़ो जज्बुल कुलूब शेख अब्दुल हक मोती से दिल्ली को। हुजूर ने फरमाया कि कब्र तैयार है, फरमाया हाँ। कहा खदीजा को, कहा मेरी आपकी बीवी को भी नहलाया जा रहा। अल्लाह के रसूल चले गए, कहा आओ चल के देखते हैं मेरी खदीजा की कब्र कहाँ। पूछो अल्लाह बुरहानी साहब से 1 किलोमीटर का फासला होगा हुजूर के घर से लेकर के हुजूर की बीवी खदीजा के मकान तक। हुजूर पैदल चले गए अपनी बीवी की कब्र के पास। देखा तो कब्र खोदी हुई थी, मिट्टियां बाहर थी, एक गड्ढा नीचे नजर आ रहा था। मालूम है क्या किया हुजूर ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल शरीफ जूती शरीफ उतारी और उतारने के बाद अपने जुब्बे को तरतीब से सजाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। उतरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक अपनी बीवी की कब्र में लेटे रहे। बीवी को गुस्ल दिया जा रहा है। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में आंसू बहा रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। हुजूर एकदम खामोश अपनी बीवी की कब्र में लेटे हुए थे। सहाबा हुजूर के इस अमल पर अजीब गरीब कैफियत में थे। बहुत देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र से निकले, अपनी पापोश मुबारक अपनी चप्पल शरीफ पहनी हुजूर ने। जब चलने लगे तो सहाबा ने कहा था, हुजूर खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप लेटे हुए थे, क्या मतलब है? तो मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा की कब्र में मैं इसलिए लेटा हुआ था कि अब मेरे लेटने की वजह से खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, अब खदीजा को वहशत नहीं होगी। खदीजा मेरे जिस्म से मानूस है, मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू है खदीजा की सुकून की तसल्लियों का सामान। हुजूर चले गए अपने घर। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा। साहिबो कभी उस जात की बात करो ना, कभी उस जात की बात करो ना तो दिल को भी अपने साथ रखा करो। हुजूर का जिक्र दिलों को ठंडक देता है। मैं शेक्सपियर की बात नहीं करता, मिल्टन की बात नहीं करता, आइंस्टाइन की बात नहीं करता, लॉर्ड निकाले की बात नहीं करता, मैं जेम्स वाट की बात नहीं करता, नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन इन जैसे कुत्तों की बात नहीं करता। मैं आमीना के लाल की बात करता हूँ। हुजूर की सीरत पढ़ा करो, हुजूर की सीरत सुना करो। हुजूर तुमसे मिलना चाहते, तुम क्यों भागते हो हुजूर से? हुजूर तुम्हें अपने करीब देखना चाहते और तुम्हें क्या दिक्कत है हुजूर के करीब जाने? आओ हुजूर की सीरत के करीब। बताओ अपने बच्चों को हुजूर की लाइफ कैसे गुजरी है, बचाओ अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी कैसे गुजरी है। अल्लाह के रसूल की बीवी का जनाजा उठा। ज़ैनब और रुकैया रोई तो हुजूर ने तसल्ली दी, फातिमा रोई तो हुजूर ने सीने से लगा लिया, ना 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 मेरी बेटी मत रो, मत रो मेरी बेटी मत रो। खदीजा को हुजूर लेके आए ना जनाजे, तदफीन अमल में आई माला कब्रिस्तान में। जब हुजूर वापस गए रात हो गई थी। मालूम है ये रात हुजूर के लिए शाम गरीबा की रात थी। बिस्तर की सिलवटें किसी का इंतजार करती थी। हुजूर की चारों बच्चियां कोने में बैठे रो रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर की बच्चियों ने कहा कि बाबा आज मेरी मां के जाने की पहली रात कैसे गुजरेगी? तो हुजूर ने सहारा दिया अपनी बच्चियों को। उसके बाद मालूम है कबीले की औरतें कभी कभी चली आती थी और हुजूर के घर में खाना बना के वो चली जाती थी। उसी खाने को हुजूर की बेटियां खाती थी, कभी कभी उसे हुजूर खाते थे। कभी कभी क्या होता था, हुजूर जख्मी होकर के आते थे, हुजूर का सर जख्मी होता था। मक्के वाले हुजूर को मारते बहुत थे, हुजूर को तकलीफें बहुत पहुंचानी, हुजूर को तकलीफें दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर के खून आलूद लिबास के साथ अपने घर में दाखिल होते रात में, तो हुजूर की बच्चियां हुजूर को जख्मी देख के रोती थी, फिर अपने हाथों से हुजूर के लिबास को धुला करती थी। उसके बाद हुजूर बैठते थे, फातिमा इधर आओ, रुकैया इधर आओ, तो हुजूर की बेटियां करीब आती तो मेरे आका अपनी बच्चियों से पूछते थे, फातिमा कुछ खाया तुमने? ज़ैनब तूने कुछ खाया? तो हुजूर की बेटियां कहती थी, बाबा कल से कुछ नहीं खाया, कल से एक रोटी का टुकड़ा भी मुंह के अंदर से नहीं गया, पेट में नहीं गया। मेरे आका रात में अपनी बच्चियों के लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह का वो रसूल जिसे तेज खुशबुओं की हवाओं से तकलीफ पहुंचे, वो अपनी बच्चियों की खातिर मदारत में किस कदर कुर्बानियां देता था। साहिबों एक हम है अपनी बच्चियों के रिश्ते को इस कदर खराब करते हैं कि दो घरों के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं और जेल खानों की सलाखें आबाद होती हैं, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। कभी बताओ अपने बच्चों को हुजूर की गरीबी, हुजूर की परेशानियों के दिन के बारे में।
ताकि घर तो कम से कम जलने से बच जाए, उजड़ने से बच जाए। मेरे आका अपनी बच्चियों को खाना खिलाते थे। पीर करम शाह अजहरी ने अपनी किताब में लिखा है, इसे भूलना नहीं, इसी अंदाज में बैठे रहोगे इंशाअल्लाह करम तो कभी न कभी हुजूर पर हो जाएगा, हुजूर का आप पर हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहते अपने हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। मालूम है पीर करम शाह अजहरी ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने घर में आए ना, तो हुजूर की चारों बेटियां हुजूर से लिपट के रोने लगी। जब चारों बेटियां हुजूर से लिपट के रोई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है मेरी बेटी ज़ैनब, क्या बात है? तो हुजूर की बेटियों ने कहा, आप जख्मी होकर घर आते हैं, आप तकलीफ में घर आते हैं, खून आपके सर से निकलता रहता है, लिबास आपका खून आलूद रहता है, आप अफसोस में रहते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, आकर के अपने लिबास को धुलने के बाद हमारे खाने का इंतजाम करते हैं। आज हम चारों बहनों ने पहली मर्तबे आपके लिए खाना बनाने का इरादा जाहिर किया। मेरे आका फरमाते फिर रोने की बात क्या है? ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम कहती हैं, ऐ आका करीम, हमने फिर तैयारी की, सारी चारों बहनें इकट्ठा हो गई, कोई लकड़ियां लेके आ गई, कोई चावल, कोई पतीली, कोई पानी, कोई ढक्कन, चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गई। दिल कहे तो बोलना, हुजूर की बच्चियां कहती हैं, बाबा जान हम चारों बहनें चूल्हे के पास ऐसे ही बैठे थे जैसे मेरी माँ खदीजा बैठा करती थी। आया आग रोशन की गई, चूल्हे को तैयार किया गया, पतीली रखी गई, पानी और चावल डाला गया। हुजूर की बच्चियां कहती, बाबा जान जब खाना पकने ही वाला था, यानी अब तैयार होने वाला था, अचानक किसी ने दरवाजे पर लात मारी। पढ़े पीर करम शाह अज़हरी को, अचानक किसी ने दरवाजे पर लात मारी। हुजूर फरमाते फिर मेरे आका की बेटियां कहती हैं, मक्के के टपोरी लोग थे, ओबाश और बदतमीज किस्म के लोग थे, उसमें हकम का बेटा भी था, उसमें अबू जहल का बेटा भी था, उसमें फला फला लोग भी थे, सरकार ये कई थे कई। मेरे बाबा जान बोले फिर, बोले घर के अंदर गालियां देते हुए घुस आए। सैदपुर की इस मजलिस में आने वालों, मुझे बताओ मैं किस घर की बात कर रहा हूं? उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर के बारे में आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते, ये कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। अल्लाह अकबर अल्लाह, लात मार के हुजूर के घर में दाखिल हो रहे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? हुजूर की बच्चियां कहती वो आपको गालियां दे रहे थे। एक तो आगे बढ़ा, चूल्हे पर पतीली थी, उसका ढक्कन खुला तो खाना पक रहा था। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा पहली मर्तबे बाबा जान के लिए, अपने अब्बू जान के लिए, आका करीम के लिए खाना हम बहनों ने तैयार किया गिफ्ट के तौर पर उन्हें देने के लिए। एक जालिम कहता, अच्छा मैं बताता हूं, बाहर चला गया। साहिबो इसे याद करो, याद करो, आपको ना ये बातें बताऊं तो किसको बताऊं? अगर मैं ये बातें बसों पे करूंगा लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेनों पे करूंगा लोग मुझे पागल समझेंगे, फ्लाइट्स में करूंगा तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं होने देंगे। मैं किससे करूं? मुझे बताएं आप, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? आका करीम की बेटियां कहती हैं कि बाबा जान उसमें से एक जालिम घर के बाहर चला गया, नाली से कीचड़ उठाया और उठा करके अंदर ले गया, ढक्कन खोल के पतीली में कीचड़ डाल के हंसता हुआ चला गया। उसका मतलब था कि खिला देना अपने बाप मोहम्मद को ये खाना। किसकी बात मैं कर रहा हूं? जिसके सदके में आज हमारे घरों में रिस्क की बोरियां बैठी हुई, उस नबी की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से कायनात की पैदाइश हुई है, कायनात की डिलीवरी हुई। अल्लाह का हबीब अल्लाह अकबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, तो मैं फिर बोले वो गालियां देके चले गए। मेरे आका ने अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया, करीबा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा करीबा। बारी बारी हुजूर ने सबकी पेशानी छूई, अपनी चारों बेटियों को सीने से लगाया। फिर हुजूर ने एक बात कही, इसे लिख लो, बात अच्छी लगे तो अपनी आवाज को बुलंद करना। मेरे आका फरमाते, ना रो मेरी ज़ैनब, ना रो मेरी रुक़ैया, मेरी उम्मे कुलसूम और फातिमा, मत रो। सुन, एक दिन ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहब बाकी रहेगा, अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। ये सब फना हो जाएंगे, एक दिन सब फना हो जाएंगे। 70 साल पहले मुरादाबाद की जमीन पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को जब हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के बाद यहां से अंग्रेजों को भगाया गया था, तो अल्लामा काफी मुरादाबादी जो इनके कबीले के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको फांसी के फंदे पर अंग्रेज ला रहा था। तो अंग्रेज जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी, फरमाया क्या बात है? कहा ये फांसी का फंदा है, तेरी कोई आखिरी वसीयत? तो अल्लामा काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस फांसी के फंदे पे हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। बोलो बोलो बोलो, इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो अंग्रेज ने कहा था, पढ़ ले काफी, ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है। तो अल्लामा काफी ने कहा, ओ कुत्ते सुन,
जो नात आज मैं पढ़ के जाऊंगा, पूरी दुनिया जब तक बाकी रहेगी ये नात पढ़ी जाती रहेगी। उसकी आंखों में आंखें डाल करके अल्लामा काफी ने शेर कहे थे, फांसी के फंदे को चूम करके सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हाथों को उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, मुझे बोलो बस रसूलुल्लाह का। मुझे हंगामा तो पसंद नहीं है, खड़े होके लगाए, खड़े होके लगाए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के जवाब दे तकबीर, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अकलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। तो मैं अंग्रेज कुत्ते सुन, मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरी नाक पढ़ी जाती रहेगी। आज भी देख लो दुनिया में किसी मुल्क में चले जाओ, अल्लाह अकबर के नाम के नारे गूंजते हैं कि नहीं गूंजते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नारा बढ़ा कैसे आया, कैसे, एक अलग तारीख इसकी है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सच साबित हुई कि नहीं? आज दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के नबी की उसवे हसना के उसूल इश्तिकर बन के चश्मा है कि नहीं है? सबसे कम उम्र का मजहब मजहब इस्लाम है, सबसे कम उम्र का मजहब। ईसाइयत इससे पहले की है, यहूदियत इससे पहले की है, बौद्धिज्म इससे पहले का है, लादीनियत तो शुरू से चल रही है। समझ रहे आप? सनमिज्म पता नहीं कब से, सबसे छोटी उम्र का मजहब है, लेकिन जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, खुदा की कसम वहां अल्लाह के नाम, उसके हबीब के नाम के नगमे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अन निकाह मेरी सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। आपसे मैं सवाल करता हूं कि हुजूर की जो शादी हुई थी वो किस बेस पर हुई थी? पैसे के बेस पर? सवाल करो तो फिर आप कहोगे अगर पैसे के बेस पर शादी हुई होती तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता। रिश्ता किधर से आया था? लड़की वालों की तरफ से। बोलो भाई, लड़की वालों की तरफ उधर से आया था, अम्मी खदीजा की तरफ से आया था। ये शादी हुस्न की बुनियाद पर, सदाकत की बुनियाद पर, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सच्चाई की बुनियाद पर। आज ये रिश्ते सिर्फ दौलत की बुनियाद पर होते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं। दौलत खत्म, रिश्ते खत्म। समझ रहे? दौलतें हैं बहुत ज्यादा तो दुल्हन को फिर मजदूर नौकरानी बनाया जाता है, अगर कम है तो लड़कियां वहां ठहरने को तैयार नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि मक्के मदीने शरीफ में हुजूर के सामने एक ब्लैक मैन, एक काले इंसान, सहाबी रसूल, जान इश्क मुस्तफा में ये वाक़या लिखा हुआ है कि सामने बैठे थे हुजूर के सामने, बिल्कुल उनकी नाक बड़ी बड़ी थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, ब्लैक मैन थे, हबशी थे, वो अफ्रीकी नज़ात थे। हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा शादी हुई? क्या पूछा हुजूर ने? शादी हुई। पूछी बोलो शादी हुई। थक गए आप लोग? जरा पीछे मुड़ के देखें, माशाअल्लाह आशिकों का हुजूम है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठाएं। देख रहे हैं बहुत भाई वक्त ज्यादा हो चुका है, बातें खत्म नहीं करने, वरना आप कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाओ। लेकिन मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ आपसे। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह? साथ चलेंगे इंशाअल्लाह, कभी गौस पाक ने करम किया इंशाअल्लाह। कह एक बात सुने, आखिरी बात, ठीक है? सब गुलफाम भाई की नाच सुनेंगे इंशाअल्लाह, इनके कदमों के नीचे बैठ कर, ठीक है? अच्छा, ये नारा तो मेरे भाई की तरफ से था, कोई एक नारा दरमियान से कोई लगाए, दरमियान से खड़े होके। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। मालूम है हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों के एहसानात के बदल अल्लाह दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे, वो लंबे चौड़े थे, ब्लैक मैन, हुजूर के साहबी थे। हुजूर फरमाया शादी हुई? बोले कि हुजूर मैं काला इंसान हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मक्के की लड़कियां खूबसूरत होती, मदीने की, मुझसे कौन शादी करेगा? फरमाते नहीं तुम शादी तो करो। बोले हुजूर किससे करे? तो मेरे आका फरमाते इसी मदीने में एक मेरे सहाबी हैं, गुलाम है, मदीने के रहने वाले, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है। मेरी बहनों सुनना, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, जाके उनसे कह दो मैं तुम्हारा रिश्ता लेके आया। कुछ बोले ना तो उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या बोलना है? मुझे हुजूर ने भेजा है। अरे रस्मी तौर पर ही सही भाई, बोलने में क्या जाता है? बोल दो भाई, मुझे हुजूर ने भेजा है। अब क्या मतलब? आप यही सोच लो कि महफिल रसूल में मुझे हुजूर ने भेजा। सब आप तो मिलता है ना भाई, हुजूर का नाम आया तो बरकत ही बरकत है। क्या कहना है? मुझे हुजूर ने भेजा। वो चले गए, वो लंबे से थे ब्लैक में, वो दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अबू निकल के आया, सलाम और बदखैरियत, क्या बात है? बोले जरूरी काम से आया हूं। बोले काम क्या है? बोले अंदर बैठ जाऊं? बोले बैठो। हाँ, अब बोलो काम क्या है? अब बोलो काम क्या है? बोले कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है,
बोले कि अल्लाह का शुक्र है, क्या बात है? बोले उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। उसी के लिए रिश्ता लेके आया। बोले अच्छी बात है, मेरी बेटी के लिए आप रिश्ता लेके आए, लेकिन ये तो बताएं वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है जिससे मेरी बेटी का रिश्ता आप करना चाहते हैं? वो लड़का कौन है? गुलफाम भाई मालूम है क्या कहा? वो लड़का कौन है? तो इन्होंने बंबई की जबान में कहा वो आपुन, मिसाल के तौर। बोले वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि वो नाराज हो गए। लड़की के बाप बोले ये क्या तरीका, ये क्या मजाक है? अपनी सूरत देखी आईने में? आप हबशी नस्ल के हैं, इथोपिया के इलाके के रहने वाले, साउथ अफ्रीका के करीब के। आपके होंठ कितने मोटे मोटे हैं, आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, आपकी पेशानी कितनी चौड़ी, इतने लंबे तक के घुंघरीले बाल हैं। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, उससे शादी करोगे? चल चल बाहर निकल, ये क्या मजाक है? डांट डपट के दरवाजे पर लेके आ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो बोले कि मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? मुस्कुरा के बोलो मुझे हुजूर ने भेजा। बोले मुझे हुजूर ने भेजा। बोले हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ऐसा कर, अभी तो तुम निकल लो यहाँ से, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम चले जाओ, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, तुम जाओ यहाँ से। जैसे वो आगे निकले ना, उनकी लड़की जो थी ना वो आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा वो किस पर नाराज थे? बोले पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले वो तू जैसी हसीन बेटी से रिश्ता मांगने आया। बोले कौन था वो? बोले अरे वो क्या बताऊं, हबशी नस्ल का अफ्रीकी नज़ात था, वो काला इंसान था, है तो ठीक है हुजूर का गुलाम है, लेकिन वो कोई जोड़ ही नहीं है। मेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, वो काला इंसान है। बेटी ने कहा फिर? बोले मैंने उसे धक्के मार के बाहर कर दिए। बेटी ने कहा फिर? बोले क्या बताऊं, जब वो दरवाजे पर गया ना तो मुझसे बोलता है मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा फिर? तो मैंने कहा चल निकल ले, मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा, अभी तो तू निकल ले यहां से। लड़की ने मालूम क्या कहा? मेरी बहनों से। लड़की ने कहा मेरे अब्बू मुझसे बुला लीजिए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। लड़की ने कहा मेरे अब्बू से बुला लीजिए। अब ये मत देखिए आने वाला कौन है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय हाय, अब ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। लड़की ने कहा अब्बू मेरी शादी उसी से होगी। कहा क्यों है, वो कैसा इंसान? मुझे छोड़ दीजिए। ये देखो उसे भेजा किसने, आमिना खिला। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अरे मेरे अब्बू से बुला लीजिए, सुने मेरी शादी उसी के साथ होगी, मेरी शादी उसी के साथ होगी। मैं जब उसके साथ मदीने के बाजारों में चलूंगी ना, मैं बड़ी खूबसूरत, वो पेलिक मैं, तो मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी है ये कौन है? ये तेरे साथ साथ चलता है। मैं कहूंगी मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। तो मुझसे बोलेंगे अरे पागल हो गई तू, इतनी कैसे इंसान से मर्द से तूने शादी किया? तो देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। मेरी लड़कियां सहेलियां मुझसे कहेंगे कैसे मर्द से तूने शादी की है? तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए थे, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए थे, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए थे, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया था। मेरा रिश्ता हुजूर पाक ने करवाया था। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, हाथों बढ़ा के बोलो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर इस अहद में रिश्ते होने लगे, खुदा की कसम बच्चे आवारा न पैदा हों, बच्चे ऐसे हों कि जो माँ बाप की मग़फ़िरत का सामान बन जाए। फिर से लगाएं नारा, फिर से लगाएं कोई नारा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल या रसूल, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल या रसूल, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह मुआशरे में जो कोई बुराइयां फैली हुई हैं उसके खात्मे के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे बच्चों में आवारगी है, नशे की तरफ बच्चे माइल हैं, गैरों की लड़कियों की तरफ ध्यान देते हैं, लड़कियां जो गैरों की तरफ ध्यान देती हैं, मैं गुजारिश करता हूँ इनके लिए क्या उसूल है? इनके लिए 3 उसूल है। एक तो ये कि आप 2 काम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, मुश्किल नहीं है आपको इसके लिए जामिअतुर रज़ा, जामिया अज़हर, जामिया अशरफिया, जामिया हनफिया रज़ाउल हक जाने की ज़रूरत नहीं है, जामिया इस्लामिया जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने घर बैठे ही अपने बच्चों को एक मोमिन बंदा बना सकते हैं, हुजूर का सच्चा आशिक बना सकते हैं। वो 2 काम ये हैं, सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। जलसों में नहीं, बस 10-20 लोग बैठ के भी हुजूर की नातें सुन सकते हैं मेरे भाइयों से। हमारा दिल कहता है कि जब ये नात पढ़े सब लोग नीचे बैठे फिर हुजूर की नातें सुने। बहुत है वो जलसा हो जाएगा। जलसा तो अकेले भी हो सकता है, नात अकेले भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कम से कम अमल करने वाले लोगों की तादाद की जरूरत है। सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें इंशाअल्लाह।
अगर हमारे घर में हराम लुकमा आया तो बच्चों को आवारा करने होने से कोई बचा नहीं पाएगा। बच्चे आवारा हो जाएंगे, यही नहीं बदअकीदे भी हो जाएंगे। सूफिया कहते हैं जिन घरों के बच्चे ज्यादा हराम खाते हैं उन्हीं की औलादें बदअकीदा हो जाती हैं, उनके अकीदे खराब हो जाते हैं। ये बुनियाद है, बुनियाद, समझ रहे हैं। और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, ये जो दुपट्टे तुम्हारे सर पे है ना, ये बड़े प्यारे हैं, मोहब्बत से बोलो। अच्छा सही बताओ, माँ के सर पे दुपट्टे होते हैं बहनों के, बीवी के, तब बहनें अच्छी लगती हैं, बीवियां अच्छी लगती हैं। माँ के सर पे दुपट्टे हो ना, तो उसी दुपट्टे के साए में घर के सारे उसकी औलादें हैं ना, पनाह में आ जाते हैं, उस दुपट्टे के साए में रहते हैं। जो दुपट्टा तुम्हारे सरों पे, कभी कभी तुम्हारी पर्स में ये दुपट्टा होता है, कभी कभी यही दुपट्टा तुम्हारे झोले में होता है, कभी कभी यही दुपट्टा तुम्हारे बड़े वाले बैग में होता है, और तुम्हारी जुल्फें खुली रहती हैं, चाट की दुकानों पे तुम खड़ी होकर खाना खाते हो। फिर जब टेलीफोन आता है तो चाट बेचने वाला कहता है अच्छा ये तुम सलाम करती हो, किसी को जवाब देती हो अपने भाई बहनों को, तो वो चाट बेचने वाला कहता है देखो ये मोमिन लड़की है, मोमिना बच्ची है, हुजूर की उम्मत की बच्चियां कैसी आवारा हो गई। पढ़े लिखे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, निकाब की पट्टियां खुली होती हैं, उनके सर के दुपट्टे जो इतने पाकीज़ा होते हैं ना, वो पता चला कि दूसरों के जूतों के नीचे रोंदे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे तकलीफ होती है। एक आखिरी बात बता दो, 1 मिनट की, हाथ उठाएं, अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो। आले अब्बास में एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है हारून रशीद, उसकी मज़ार जो है ना फ़लस्तीन में, उसकी बीवी का नाम है जुबैदा, उसकी मज़ार शरीफ बगदाद के करख मोहल्ले में, मैं कई मरतबे गया हूँ, जुबैदा है। इन्होंने हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी, तारीख पढ़ी होगी आपने, एक बहुत बड़ी